صحیح بخاری کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب تواضع کا بیان، حدیث نمبر 6501۔ ترجمہ: ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے زبیر بن معاوی نے بیان کیا، کہا ہم سے حمید نے بیان کیا، ان سے انس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو فزاری نے اور ابو خالد احمر نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے، اور ان سے انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عزبہ تھا، کوئی جانور دوڑ میں اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ پھر ایک اعرابی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے بڑھ گیا۔ مسلمانوں پر یہ معاملہ بڑا شاق گزرا اور کہنے لگے کہ افسوس عزبہ پیچھے رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لی ہے کہ جب دنیا میں وہ کسی چیز کو بڑھاتا ہے تو اسے وہ گھٹاتا بھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب تواضع کا بیان، حدیث نمبر 6502۔ ترجمہ: مجھ سے محمد بن عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن مخلد نے، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے، ان سے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے، ان سے عطا نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجھا تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، اور قیامت کا معاملہ بس آنکھ کے جھپکنے کی طرح بلکہ اس سے بھی جلد ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث نمبر 6503۔ ترجمہ: ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو حازم نے بیان کیا، ان سے سہل نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اتنے نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کے اشارہ سے اس نزدیکی کو بتایا، پھر ان دونوں کو پھیلایا۔ صحیح بخاری کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، اور قیامت کا معاملہ بس آنکھ کے جھپکنے کی طرح بلکہ اس سے بھی جلد ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث نمبر 6504۔ ترجمہ: مجھ سے عبداللہ بن محمد جفی نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ اور ابوالطیہ نے، اور ان سے انس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، اور قیامت کا معاملہ بس آنکھ کے جھپکنے کی طرح بلکہ اس سے بھی جلد ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث نمبر 6505۔ ترجمہ: مجھ سے یحییٰ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو بکر بن عیاش نے خبر دی، انہیں ابو حسین نے، انہیں ابو صالح نے، انہیں ابو ہریرہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دو کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی مراد دو انگلیوں سے تھی۔ ابو بکر بن عیاش کے ساتھ اس حدیث کو اسرائیل نے بھی ابو حسین سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، حدیث نمبر 6506۔ ترجمہ: ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا، ان سے عبدال الرحمن نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہو۔
बस क़यामत आ जाएगी और दो आदमी कपड़ा दरमियान में खरीदो फरोख्त के लिए फैलाए हुए होंगे। अभी खरीदो फरोख्त भी नहीं हुई होगी और ना इन्होंने उसे लपेटा ही होगा कि क़यामत कायम हो जाएगी, और क़यामत इस हाल में कायम हो जाएगी कि एक शख्स अपनी ओनटनी का दूध लेकर आ रहा होगा और उसे पी भी नहीं सकेगा, और क़यामत इस हाल में कायम हो जाएगी कि एक शख्स अपना हौज़ तैयार करा रहा होगा और इसका पानी भी ना पी पाएगा। क़यामत इस हाल में कायम हो जाएगी कि एक शख्स अपना लुक़मा अपने मुंह की तरफ उठाएगा और उसे खाने भी ना पाएगा। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जो शख्स अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह ताला इससे मिलने को पसंद करता है। हदीस नंबर 6507। तर्जुमा हमसे हुज्जाज ने बयान किया, कहा हमसे हमाम ने, कहा हमसे क़तादा ने, उनसे अनस ने और उनसे इबादा बिन सामत ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से मिलने को महबूब रखता है अल्लाह भी इससे मिलने को महबूब रखता है, और जो अल्लाह से मिलने को पसंद नहीं करता है अल्लाह भी इससे मिलने को पसंद नहीं करता। और आयशा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अज़वाज ने अर्ज़ किया कि मरना तो हम भी नहीं पसंद करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के मिलने से मौत मुराद नहीं है, बल्कि बात यह है कि ईमानदार आदमी को जब मौत आती है तो उसे अल्लाह की खुशनुदी और इसके यहाँ उसकी इज़्ज़त की खुशखबरी दी जाती है। उस वक्त मोमिन को कोई चीज़ इससे ज़्यादा अजीज़ नहीं होती जो उसके आगे अल्लाह से मुलाकात और इसकी रज़ा और जन्नत के हुसूल के लिए होती है, इसलिए वो अल्लाह से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हो जाता है और अल्लाह भी इसकी मुलाकात को पसंद करता है। और जब काफिर की मौत का वक्त करीब आता है तो उसे अल्लाह के अज़ाब और इसकी सज़ा की बशारत दी जाती है। उस वक्त कोई चीज़ इसके दिल में इससे ज़्यादा नागवार नहीं होती जो उसके आगे होती है। वो अल्लाह से जा मिलने को नापसंद करने लगता है, बस अल्लाह भी इससे मिलने को नापसंद करता है। अबू दाऊद तयालसी और इमरू बिन मरज़ूक़ ने इस हदीस को शोबा से मुख्तसरा रिवायत किया है और सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे ज़रारा बिन अबी औफ़ी ने, उनसे साद ने और उनसे आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जो शख्स अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह ताला इससे मिलने को पसंद करता है। हदीस नंबर 6508। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने, उनसे यजीद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अबू बरदा ने, उनसे अबू मूसा अशअरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से मिलने को पसंद करता है अल्लाह भी इससे मिलने को पसंद करता है, और जो शख्स अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है अल्लाह भी इससे मिलने को नापसंद करता है। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जो शख्स अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह ताला इससे मिलने को पसंद करता है। हदीस नंबर 6509। तर्जुमा मुझसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील बिन खालिद ने, उनसे इब्न शहाब ने, कहा मुझको सईद बिन मुसैब और रू बिन ज़ुबैर ने चंद इल्म वालों के सामने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप खासा तंदुरुस्त थे फरमाया था, किसी नबी की इस वक्त तक रूह कब्ज़ा नहीं की जाती जब तक जन्नत में इसके रहने की जगह से दिखा ना दी जाती हो, और फिर उसे दुनिया या आखिरत के लिए इख्तियार दिया जाता है। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी रान पर था तो आप पर थोड़ी देर के लिए ख़शी छा गई। फिर जब आपको होश आया तो आप छत की तरफ टिकटिकी लगाकर देखने लगे। फिर फरमाया, अल्लाह मलरफ़िक़ अला आली मैंने कहा कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तरजीह नहीं दे सकते, और मैं समझ गई कि ये वही हदीस है जो आपने एक मरतबा इरशाद फरमाई थी। रावी ने बयान किया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कलिमा था जो आपने अपनी ज़बान मुबारक से अदा फरमाया, यानी ये इरशाद के अल्लाह मलरफ़िक़ अला आली, यानी या अल्लाह मुझको बुलंद रफ़ीक़ों का साथ पसंद है। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब सिकरात मौत का बयान। हदीस नंबर 6510। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन उबैद बिन मैमून ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे ईसा बिन यूनुस ने बयान किया, उनसे उम्र बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझको इब्न अबी मलीका ने खबर दी, इन्हीं आयशा के ग़ुलाम अबू अमरू ज़कून ने खबर दी कि उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहा करती थीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त आपके सामने एक बड़ा पानी का प्याला रखा हुआ था जिसमें पानी था। यह उम्र को शुबाह हवा के हांडी का को नड़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ इस बर्तन में डालते और फिर इस हाथ को अपने चेहरा पर मिलते और फरमाते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,
बिलाशुबा मौत में तकलीफ होती है। फिर आप अपना हाथ उठाकर फरमाने लगे फ़ी अलरफ़िक़ अला अली, यहाँ तक कि आपकी रूह मुबारक कब्ज़ा हो गई और आपका हाथ झुक गया। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब सिकरात मौत का बयान। हदीस नंबर 6511। तर्जुमा। मुझसे सदका ने बयान किया, कहा हमको अब्दा ने खबर दी, इन्हीं हश्शाम ने, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि चंद बदुए जो नंगे पाँव रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और आपसे दरियाफ्त करते थे कि क़यामत कब आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से कम उम्र वाले को देखकर फरमाने लगे कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो इसके बुढ़ापे से पहले तुम पर तुम्हारी क़यामत आ जाएगी। हश्शाम ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद क़यामत से उनकी मौत थी। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब सिकरात मौत का बयान। हदीस नंबर 6512। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इमरू हलहला ने, उनसे साद बिन कब बिन मालिक ने, उनसे अबू कतादा बिन रबई अंसारी ने। वो बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से लोग एक जनाजा लेकर गुजरे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्तरी या मुस्तरा है, यानी इसे आराम मिल गया या इससे आराम मिल गया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अलमुस्तरी और अलमुस्तरा मुँह का क्या मतलब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बंदा दुनिया की मशक्क़तों और तकलीफ़ों से अल्लाह की रहमत में निजात पा जाता है, वो मुस्तरी है, और मुस्तरा मुँह वो है कि फाजर बंदा से अल्लाह के बंदे, शहर, दरख्त और चौपाए सब आराम पा जाते हैं। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब सिकरात मौत का बयान। हदीस नंबर 6513। तर्जुमा। मसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे अब्दरबा बिन सईद ने, उनसे मोहम्मद बिन उम्र ने बयान किया, उनसे तलहा बिन कब ने बयान किया, उनसे अबू कतादा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मरने वाला या तो आराम पाने वाला है या दूसरे बंदों को आराम देने वाला है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब सिकरात मौत का बयान। हदीस नंबर 6514। तर्जुमा। हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन इमरू बिन हज़्म ने बयान किया, इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के साथ तीन चीज़ें चलती हैं, दो तो वापस आ जाती हैं, सिर्फ एक काम इसके साथ रह जाता है, उसके साथ इसके घर वाले, इसका माल और इसका अमल चलता है, इसके घर वाले और माल तो वापस आ जाता है और इसका अमल उसके साथ बाकी रह जाता है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब सिकरात मौत का बयान। हदीस नंबर 6515। तर्जुमा। हमसे अबुल-नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मरता है तो सुबह व शाम, जब तक वो बरज़ख में है, इसके रहने की जगह इसे हर रोज़ दिखाई जाती है, या दोज़ख हो या जन्नत, और कहा जाता है कि ये तेरे रहने की जगह है यहाँ तक कि तू उठाया जाए, यानी क़यामत के दिन तक। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब सिकरात मौत का बयान। हदीस नंबर 6516। तर्जुमा। हमसे अली बिन जद ने बयान किया, कहा हमको शोबा बिन हुज्जाज ने खबर दी, इन्हीं अमिश ने, इन्हीं मुजाहिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग मर गए उनको बुरा ना कहो, क्योंकि जो कुछ इन्होंने आगे भेजा था इसके पास वो खुद पहुँच चुके हैं, इन्होंने बुरे भले जो भी अमल किए थे वैसा बदला पा लिया। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब सूर फुंकने का बयान। मुजाहिद ने कहा कि सूर बोक की तरह एक चीज़ है, जजरा के मानी चीफ के हैं, और इब्न अब्बास रिज़्क ने कहा कि नाकूर से मुराद सूर है, राजफा से मुराद पहली फूंक है और रादफा से मुराद दूसरी फूंक है। हदीस नंबर 6517। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने और अबदाल रहमन अल-अरज ने बयान किया, इन दोनों ने बयान किया कि अबू हरीरा ने फरमाया कि दो आदमियों ने आपस में गाली गलौच की, जिनमें से एक मुसलमान था और दूसरा यहूदी था। मुसलमान ने कहा कि इस परवरिदगार की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान पर बरगज़ीदा किया। यहूदी ने कहा कि इस परवरिदगार की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम जहान पर बरगज़ीदा किया। रावी ने बयान किया कि मुसलमान यहूदी की बात सुनकर खफा हो गया और इसके मुंह पर एक तमांचा रसीद किया। वो यहूदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना और मुसलमान का सारा वाक़या बयान किया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मूसा अलैहिस्सलाम पर मुझको फजीलत मत दो, क्योंकि क़यामत के दिन ऐसा होगा कि सूर फूंकते ही तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे और मैं सबसे पहला शख्स हूँगा जिसे होश आएगा। मैं क्या देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श इलाही का कोना थामे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि मूसा अलैहिस्सलाम भी उन लोगों में होंगे जो बेहोश हुए थे और फिर मुझसे पहले ही होश में आ गए थे, या उनमें से होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने इससे मुस्तस्ना कर दी। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब सूर फूंकने का बयान। मुजाहिद ने कहा कि सूर बोक की तरह एक चीज़ है। जजरा के मानी चीफ के हैं और इब्न अब्बास रिज़्क़ ने कहा कि नाखूर से मुराद सूर है, राजफा से मुराद पहली फूंक है और रादफा से मुराद दूसरी फूंक है। हदीस नंबर 6518। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा हमसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहोशी के वक्त तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे और सबसे पहले उठने वाला मैं हूँगा। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अर्श इलाही का कोना थामे होंगे। अब मैं नहीं जानता कि वो बेहोश भी होंगे या नहीं। इस हदीस को अब्बू सईद खदरी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह ताला ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। नाफा ने उसको इब्न उम्र रिज़्क़ से, इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया। हदीस नंबर 6519। तर्जुमा हमसे मकातिल मरूज़ी ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको यूनुस बिन यजीद एली ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा मुझसे सईद बिन मुसैयब ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा और आसमानों को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा, फिर फरमाएगा कि अब मैं हूँ बादशाह, आज ज़मीन के बादशाह कहाँ गए। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह ताला ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। नाफा ने उसको इब्न उम्र रिज़्क़ से, इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया। हदीस नंबर 6520। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे खालिद बिन यजीद ने, उनसे सईद बिन अबी हलाल ने, उनसे ज़ैद बिन असलम ने, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अब्बू सईद खदरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सारी ज़मीन एक रोटी की तरह हो जाएगी जिसे अल्लाह ताला अहल जन्नत की मेज़बानी के लिए अपने हाथ से उल्टे पलटेगा, जिस तरह तुम दस्तरख़्वान पर रोटी लहराते फिराते हो। फिर एक यहूदी आया और बोला, अबुल कासिम, तुम पर रहमान बरकत नाजल करे, किया मैं तुम्हें क़यामत के दिन अहल जन्नत की सबसे पहली ज़ियाफ़त के बारे में ख़बर ना दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं। तो उसने भी यही कहा कि सारी ज़मीन एक रोटी की तरह हो जाएगी, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ देखा और मुस्कुराए, जिससे आपके आगे के दंत दिखाई देने लगे। फिर उसने खुद ही पूछा, किया मैं तुम्हें उसके सालन के मुताल्लिक़ ख़बर ना दूँ। फिर खुद ही बोला कि उनका सालन बालाम बनून होगा। सहाबा ने कहा कि ये क्या चीज़ है। इसने कहा कि बेल और मछली जिसकी कलीजी के साथ ज़ायद चर्बी के हिस्से को 70,000 आदमी खाएंगे। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह ताला ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। नाफा ने उसको इब्न उम्र रिज़्क़ से, इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया। हदीस नंबर 6521। तर्जुमा हमसे सईद बिन अबू मरीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मोहम्मद बिन जाफ़र ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने सहल बिन साद अल-साइदी से सुना, कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों का हश्र सफ़ेद वाओ सुर्ख़ी आमेज़ ज़मीन पर होगा, जैसे मैदा की रोटी साफ़ वाओ सफ़ेद होती है। इस ज़मीन पर किसी चीज़ का कोई निशान ना होगा। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब हश्र की कैफियत का बयान। हदीस नंबर 6522। तर्जुमा हमसे मुअल्ला बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन ताउस ने, उनसे उनके वालिद ताउस ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों का हश्र 3 फ़िरक़ों में होगा। एक फ़िरक़ा वाले लोग रग़बत करने नीज़ डरने वाले होंगे। दूसरा फ़िरक़ा ऐसे लोगों का होगा कि एक ऊँट पर 2 आदमी सवार होंगे, किसी ऊँट पर 3 होंगे, किसी ऊँट पर 4 होंगे और किसी पर 10 होंगे।
اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ اہل شرک کا یہ تیسرا فرقہ ہوگا، جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی، جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی، جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی، اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب حشر کی کیفیت کا بیان۔ حدیث نمبر 6523۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس بن محمد بغدادی نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نحوی نے بیان کیا، کہا ان سے قتادہ نے، کہا ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، قیامت میں کافروں کو ان کے چہرے کے بل کس طرح حشر کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا اسے اس پر قدرت نہیں ہے کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلا دے۔ قتادہ نے کہا کہ ضرور ہے، ہمارے رب کی عزت کی قسم، بے شک وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب حشر کی کیفیت کا بیان۔ حدیث نمبر 6524۔ ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، انہوں نے ابن عباس سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور پیدل چل کر بن ختنہ ملو گے۔ سفیان نے کہا کہ یہ حدیث 9 یا 10 حدیثوں میں سے ہے جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ ابن عباس نے خود ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب حشر کی کیفیت کا بیان۔ حدیث نمبر 6525۔ ترجمہ۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے، ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ منبر پر خطبہ میں فرما رہے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ ہوگے۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب حشر کی کیفیت کا بیان۔ حدیث نمبر 6526۔ ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے گندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن نعمان نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے، ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا تم لوگ قیامت کے دن اس حال میں جمع کیے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم ہوگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما بدانا اول خلق نعیدہ کہ جس طرح ہم نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح لوٹا دیں گے۔ اور تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جسے کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور میری امت کے بہت سے لوگ لائے جائیں گے جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ میں اس پر کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا نئی نئی بدعات نکالی تھیں۔ اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وکنت علیہم شہیدہ ما دمت فیہم کہ یا اللہ، میں جب تک ان میں موجود رہا اس وقت تک میں ان پر گواہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے ہی رہے، مرتد ہوتے رہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب حشر کی کیفیت کا بیان۔ حدیث نمبر 6527۔ ترجمہ۔ ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن ابی صغیرہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی ملکیہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں، ننگے جسم بلا ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب حشر کی کیفیت کا بیان۔ حدیث نمبر 6528۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے گندر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابوا سحاق نے بیان کیا، ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا 1/4 رہو؟ ہم نے کہا کہ جی ہوں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इस पर राज़ी हो कि अहल जन्नत का तुम एक तिहाई रहो। हमने कहा जी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इस पर राज़ी हो कि अहल जन्नत का तुम निस्फ़ रहो। हमने कहा जी हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग उम्मत मुस्लिमा अहल जन्नत का हिस्सा होगे, और ऐसा इसलिए होगा कि जन्नत में फरमानबरदार नफ्स के अलावा और कोई दाखिल न होगा, और तुम लोग शिर्क करने वालों के दरमियान तादाद में इस तरह होगे जैसे सियाह बेल के जिस्म पर सफ़ेद बाल होते हैं या जैसे सुर्ख के जिस्म पर एक सियाह बाल हो। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब हश्र की कैफियत का बयान। हदीस नंबर 6529। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अवैस ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे भाई ने बयान किया, उनसे सुलेमान ने, उनसे सूर ने, उनसे अबुलगीस ने, उनसे अबू हरीरा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पुकारा जाएगा। फिर उनकी नस्ल उनको देखेगी तो कहा जाएगा कि ये तुम्हारे बुजुर्ग दादा आदम हैं। पुकारने पर वो कहेंगे कि लबीक व सदीक। अल्लाह ताला फरमाएगा कि अपनी नस्ल में से दोज़ख का हिस्सा निकाल लो। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए परवरिदगार, कितनों को निकालूं? अल्लाह ताला फरमाएगा फ़ीसद 99% दोज़खी एक जन्नती। सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब हम में 100 में 99 निकाल दिए जाएं तो फिर बाकी क्या रह जाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम उम्मतों में मेरी उम्मत इतनी ही तादाद में होगी जैसे सियाह बेल के जिस्म पर सफ़ेद बाल होते हैं। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि बेशक क़यामत का ज़लज़ला एक बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला का कौल कि आने वाली आ गई और करीब आ गई क़यामत। हदीस नंबर 6530। तर्जुमा। मुझसे यूसुफ बिन मूसा क़ितान ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबूसाला ने और उनसे अबू सईद ख़दरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, हाजिर हूँ, फर्माबरदार हूँ और हर भलाई तेरे हाथ में है। अल्लाह ताला फरमाएगा, जो लोग जहन्नम में डाले जाएंगे इन्हें निकाल लो। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, जहन्नम में डाले जाने वाले लोग कितने हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर 1000 में से 999। यही वो वक्त होगा जब बच्चे गम से बूढ़े हो जाएंगे और हामिला औरतें अपना हमल गिरा देंगी और तुम लोगों को नशा की हालत में देखोगे, हालांकि वो वाकई नशा की हालत में न होंगे बल्कि अल्लाह का अज़ाब सख्त होगा। सहाबा को ये बात बहुत सख्त मालूम हुई तो इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर हम में से वो खुशनसीब शख्स कौन होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ही खुशखबरी हो, 1000 याजूज माजूज के कौम से होंगे और तुम में से वो एक जन्नती होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अहल जन्नत का एक तिहाई हिस्सा होगे। रावी ने बयान किया कि हमने इस पर अल्लाह की हम्द बयान की और उसकी तकबीर कही। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि आधा हिस्सा अहल जन्नत का तुम लोग होगे। तुम्हारी मिसाल दूसरी इम्मतों के मुकाबला में ऐसी है जैसे किसी सियाह बेल के जिस्म पर सफ़ेद बालों की मामूली तादाद होती है या वो सफ़ेद दाग जो गधे के आगे के पाँव पर होता है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि वो लोग यकीन नहीं करते हैं कि वो लोग बड़े दिन में उठाए जाएंगे जिस दिन लोग रब अल-आलमीन के सामने खड़े होंगे। और इब्न अब्बास ने कहा, वतक़तत हम अलास काफिरों के तमाम इस मुनक़ते हो जाएंगे, और कहा कि मेलजूल सिर्फ दुनिया तक है। हदीस नंबर 6531। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबान ने बयान किया, कहा हमसे ईसा बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे इब्न औन ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे इब्न उम ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम यक़ूम अल-नास रब्बिल आलमीन की तफसीर में फरमाया कि तुम में से हर कोई सारे जहानों के परवरिदगार के आगे खड़ा होगा इस हाल में कि उसका पसीना कानों की लो तक पहुँचा हुआ होगा। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि वो लोग यकीन नहीं करते हैं कि वो लोग बड़े दिन में उठाए जाएंगे जिस दिन लोग रब अल-आलमीन के सामने खड़े होंगे। और इब्न अब्बास ने कहा, वतक़तत हम अलास काफिरों के तमाम इस मुनक़ते हो जाएंगे, और कहा कि मेलजूल सिर्फ दुनिया तक है। हदीस नंबर 6532। तर्जुमा।
मुझसे अब्दुलअजीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, उनसे सूर बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अबुलगीस ने, और इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग पसीने में शराबवर हो जाएंगे और हालत ये हो जाएगी कि तुम में से हर किसी का पसीना ज़मीन पर 70 हाथ तक फैल जाएगा और मुँह तक पहुँचकर कानों को छूने लगेगा। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब क़यामत में क़सास ले जाने का बयान, और उसका नाम हाका है इसलिए कि इस दिन तमाम कामों का बदला दिया जाएगा। हक़ा और क़ारा और काशिया और साखा के एक ही मानी हैं और तग़ाबन के मानी हैं अहल जन्नत का दोज़ख वालों को फरामोश कर देना। हदीस नंबर 6533। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, कहा मुझसे शकीक ने बयान किया, कहा मी ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिस चीज़ का फ़ैसला लोगों के दरमियान होगा वो नाहक़ों के बदला का होगा। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब क़यामत में क़सास ले जाने का बयान, और उसका नाम हाका है इसलिए कि इस दिन तमाम कामों का बदला दिया जाएगा। हक़ा और क़ारा और काशिया और के एक ही मानी हैं और तग़ाबन के मानी हैं अहल जन्नत का दोज़ख वालों को फरामोश कर देना। हदीस नंबर 6534। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे सईद मकबरी ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने किसी भाई पर जुल्म किया हो तो उसे चाहिए कि इससे इस दुनिया में मुआफ़ करा ले, इसलिए कि आखिरत में रुपए पैसे नहीं होंगे। इससे पहले मुआफ़ करा ले कि इसके भाई के लिए इसकी नेकियों में से हक़ दिलाया जाएगा, और अगर इसके पास नेकियां न होंगी तो इस मज़लूम भाई की बुराइयां इस पर डाल दी जाएंगी। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब क़यामत में क़सास ले जाने का बयान, और उसका नाम हाका है इसलिए कि इस दिन तमाम कामों का बदला दिया जाएगा। हक़ा और क़ारा और काशिया और के एक ही मानी हैं और तग़ाबन के मानी हैं अहल जन्नत का दोज़ख वालों को फरामोश कर देना। हदीस नंबर 6535। तर्जुमा। हमसे सलत बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया इस आयत के बारे में, वंजना माफ़ी सदूरहम मनगल, कहा कि हमसे सईद ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया, उनसे अबुल मुतुकल नाजी ने और उनसे अबू सईद ख़दरी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमिनीन जहन्नम से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन दोज़ख व जन्नत के दरमियान एक पल पर इन्हें रोक लिया जाएगा और फिर एक के दूसरे पर इन मज़ालिम का बदला लिया जाएगा जो दुनिया में इनके दरमियान आपस में हुए थे, और जब कानट छंट कर ली जाएगी और सफाई हो जाएगी तब इन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी। बस इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जन्नतियों में से हर कोई जन्नत में अपने घर को दुनिया के अपने घर के मुकाबला में ज़्यादा बेहतर तरीक़े पर पहचान लेगा। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जिसके हिसाब में पूछ-गछ की गई तो इस अज़ाब होगा। हदीस नंबर 6536। तर्जुमा। मुझसे इमरू बिन अली ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे उस्मान बिन असूद ने, इन्होंने कहा मैंने इब्न नबी मलिका से सुना, कहा कि मैंने आयशा से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही सुना। और इस रिवायत का मुताबिक इब्न जरेज, मोहम्मद बिन सलीम, अयूब और सालेह बिन रुस्तम ने इब्न नबी मलिका से की है, इन्होंने आयशा से और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जिसके हिसाब में पूछ-गछ की गई तो इस अज़ाब होगा। हदीस नंबर 6537। तर्जुमा। मुझसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमसे रूह बिन इबादा ने बयान किया, कहा हमसे हातिम बिन अबू सफ़ैरा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका ने बयान किया, कहा मुझसे कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से भी क़यामत के दिन हिसाब लिया गया पस वो हलाक हुआ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया अल्लाह ताला ने खुद नहीं फरमाया है, फ़ामा मन आवती किताबा बेमीना सितारा फसूफ यहासब हसाबा यसीरा कि पस जिसका नामा आमाल इसके दाएं हाथ में दिया गया तो अनकरीब इससे एक आसान हिसाब लिया जाएगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो सिर्फ पेशी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहने का मतलब ये है कि क़यामत के दिन जिसके भी हिसाब में खोद खरीद की गई इसको अज़ाब यकीनी होगा। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जिसके हिसाब में पूछ-गछ की गई तो इस अज़ाब होगा। हदीस नंबर 6538। तर्जुमा।
हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे मुआज़ बिन हश्शाम ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अनस ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दूसरी सनद, और मुझसे मोहम्मद बिन मुअम्मर ने बयान किया, कहा हमसे रूह बिन इबादा ने बयान किया, कहा हमसे सईद ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, कहा हमसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि क़ियामत के दिन काफिर को लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर ज़मीन भर कर तुम्हारे पास सोना हो तो क्या सबको अपनी निजात के लिए फिदिया में दे दोगे? वो कहेगा कि हम, तो उस वक्त इससे कहा जाएगा कि तुमसे इससे बहुत आसान चीज़ का दुनिया में मुतालबा किया गया था। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जिसके हिसाब में पूछ-गछ की गई तो इस अजाब होगा। हदीस नंबर 6539। तर्जुमा मुझसे उम्र बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि मुझसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मुझसे ख़ैसिमा ने बयान किया, उनसे एदी बिन हातिम ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में हर फ़र्द से अल्लाह ताला क़ियामत के दिन इस तरह कलाम करेगा कि अल्लाह के और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। फिर वो देखेगा तो उसके आगे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। फिर वो अपने सामने देखेगा और उसके सामने आग होगी। बस तुम में से जो शख्स भी चाहे कि वो आग से बचे तो वो अल्लाह की राह में खैरात करता रहे, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े के ज़रिया ही मुमकिन हो। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जिसके हिसाब में पूछ-गछ की गई तो इस अजाब होगा। हदीस नंबर 6540। तर्जुमा इदी बिन हातिम से एक और रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम से बचो, फिर आपने चेहरा फेर ली, फिर फरमाया कि जहन्नम से बचो और फिर इसके बाद चेहरा मुबारक फेर ली, फिर फरमाया जहन्नम से बचो। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। हमने इससे ये ख्याल किया कि आप जहन्नम देख रहे हैं। फिर फरमाया कि जहन्नम से बचो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े ही के ज़रिया हो सके और जिसे ये भी ना मिले तो उसे लोगों में किसी अच्छी बात कहने के ज़रिया से ही जहन्नम से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत में 70,000 आदमी बग़ैर हिसाब के दाखिल होंगे। हदीस नंबर 6541। तर्जुमा हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन फजील ने, कहा हमसे हसीन बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, दूसरी सनद, और मुझसे असीद बिन जैद ने बयान किया, कहा हमसे हश्शीम ने बयान किया कि मैं सईद बिन जबीर की खिदमत में मौजूद था उस वक्त। इन्होंने बयान किया कि मुझसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने अमती पेश की गई, किसी नबी के साथ पूरी उम्मत गुजरी, किसी नबी के साथ चंद आदमी गुजरे, किसी नबी के साथ 10 आदमी गुजरे, किसी नबी के साथ 5 आदमी गुजरे और कोई नबी तन्हा गुजरा। फिर मैंने देखा तो इंसानों की एक बहुत बड़ी जमात दूर से नजर आई। मैंने जबराइल से पूछा, क्या ये मेरी उम्मत है? इन्होंने कहा नहीं, बल्कि उफ़क़ की तरफ देखो। मैंने देखा तो एक बहुत ज़बरदस्त जमात दिखाई दी। फरमाया कि ये है आपकी उम्मत और ये जो आगे आगे 70,000 की तादाद है, उन लोगों से हिसाब ना लिया जाएगा और ना उन पर अजाब होगा। मैंने पूछा, ऐसा क्यों होगा? इन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि ये लोग दाग नहीं लगवाते थे, दमझाड़ नहीं करवाते थे, शुगुन नहीं लेते थे, अपने रब पर भरोसा करते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अकाशा बिन महसन उठकर बढ़े और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे भी उन लोगों में कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह, इन्हें भी उनमें से कर दे। इसके बाद एक और सहाबी खड़े हुए और अर्ज़ किया कि मेरे लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे भी उनमें से कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकाशा इसमें तुमसे आगे बढ़ गए। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत में 70,000 आदमी बग़ैर हिसाब के दाखिल होंगे। हदीस नंबर 6542। तर्जुमा हमसे मुआज़ बिन असद मरूज़ी ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा हमको यूनुस बिन यज़ीद ने ख़बर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा कि मुझसे सईद बिन मुसैयब ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की एक जमात जन्नत में दाखिल होगी जिसकी तादाद 70,000 होगी। उनके चेहरे इस तरह रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चंद रोशन होता है। अबू हरीरा ने बयान किया कि इस पर अकाशा बिन महसन असदी खड़े हुए, अपनी धारीदार कमली जो उनके जिस्म पर थी उठाते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मुझे भी उनमें से कर दे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह इन्हें भी उनमें से कर दे। इसके बाद एक और सहाबी खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आकाशा तुम पर सक़त ले गए। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत में 70,000 आदमी बग़ैर हिसाब के दाखिल होंगे। हदीस नंबर 6543। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबू मरीम ने बयान किया, कहा हमसे अबू गुसान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हाज़म ने बयान किया, उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में मेरी उम्मत के 70,000 या 7 लाख रावी को उनमें से किसी एक तादाद में शक था आदमी इस तरह दाखिल होंगे कि बाज़ को पकड़े हुए होंगे और उस तरह इनमें के अगले पिछले सब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और उनके चेहरे 14वीं रात के चंद की तरह रोशन होंगे। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत में 70,000 आदमी बग़ैर हिसाब के दाखिल होंगे। हदीस नंबर 6544। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे सालेह ने, कहा हमसे नाफा ने बयान किया और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अहल जन्नत जन्नत में और अहल जहन्नम जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे तो एक आवाज़ देने वाला इनके दरमियान खड़ा होकर पुकारेगा कि ऐ जहन्नम वालों, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी और ऐ जन्नत वालों, तुम्हें भी मौत नहीं आएगी बल्कि हमेशा यहीं रहना होगा। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत में 70,000 आदमी बग़ैर हिसाब के दाखिल होंगे। हदीस नंबर 6545। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा हमसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहल जन्नत से कहा जाएगा कि ऐ अहल जन्नत, हमेशा तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हें मौत नहीं आएगी और अहल दोज़ख से कहा जाएगा कि ऐ दोज़ख वालों, हमेशा तुमको यहीं रहना है, तुमको मौत नहीं आएगी। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत और दोज़ख की सिफत का बयान। अबू सईद ने कहा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती सबसे पहले खाना जो खाएंगे वो मछली की कलीजी होगी। अदन के मानी ही हमेशा रहना, अदनत बारस के मानी ही मकीन ने इस ज़मीन में क़याम किया, मक़ाद सद्दिक़ में मदन उसी से माखूज़ है, यानी सच्चाई पैदा होने की जगह। हदीस नंबर 6546। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन हसीम ने बयान किया, कहा हमसे औफ बिन अबी जमीला ने बयान किया, उनसे अबू रजा इमरान अतारदी ने, उनसे इमरान बिन हसीम ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो वहाँ रहने वाले अक्सर गरीब लोग थे और मैंने जहन्नम में झांक कर देखा शब मिराज में तो वहाँ औरतें थीं। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत और दोज़ख की सिफत का बयान। अबू सईद ने कहा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती सबसे पहले खाना जो खाएंगे वो मछली की कलीजी होगी। अदन के मानी ही हमेशा रहना, अदनत बारस के मानी ही मकीन ने इस ज़मीन में क़याम किया, मक़ाद सद्दिक़ में मदन उसी से माखूज़ है, यानी सच्चाई पैदा होने की जगह। हदीस नंबर 6547। तर्जुमा। हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान तीमी ने बयान किया, इन्हीं अबुस्मान नहदी ने, इन्हीं उसामा बिन ज़ैद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हुआ तो वहाँ अक्सर दाखिल होने वाले मुहताज लोग थे और मेहनत मजदूरी करने वाले थे और मालदार लोग एक तरफ रोके गए हैं, उनका हिसाब लेने के लिए बाकी है, और जो लोग दोज़खी थे वो तो दोज़ख के लिए भेज दिए गए और मैंने जहन्नम के दरवाज़े पर खड़े होकर देखा तो इसमें अक्सर दाखिल होने वाली औरतें थीं। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत और दोज़ख की सिफत का बयान। अबू सईद ने कहा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती सबसे पहले खाना जो खाएंगे वो मछली की कलीजी होगी। अदन के मानी ही हमेशा रहना, अदनत बारस के मानी ही मकीन ने इस ज़मीन में क़याम किया, मक़ाद सद्दिक़ में मदन उसी से माखूज़ है, यानी सच्चाई पैदा होने की जगह। हदीस नंबर 6548। तर्जुमा। हमसे मुआज़ बिन असद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, इन्होंने कहा हमको उम्र बिन मोहम्मद बिन ज़ैद ने खबर दी, इन्हीं उनके वालिद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अहल जन्नत जन्नत में चले जाएंगे और अहल दोज़ख दोज़ख में चले जाएंगे तो मौत को लाया जाएगा और उसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान रखकर ज़बा कर दी जाएगा। फिर एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि ऐ जन्नत वालों,
तुम्हें अब मौत नहीं आएगी और ए दोज़ख वालों, तुम्हें भी अब मौत नहीं आएगी। इस बात से जन्नती और ज़्यादा खुश हो जाएंगे और जहन्नमी और ज़्यादा गमगीन हो जाएंगे। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत और दोज़ख की सिफत का बयान। अबू सईद ने कहा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती सबसे पहले खाना जो खाएंगे वो मछली की कलीजी होगी। अदन के मानी ही हमेशा रहना, अदनत बारस के मानी ही मकीन ने इस ज़मीन में क़याम किया, मक़ाद सद्दिक़ में मदन उसी से माखूज़ है, यानी सच्चाई पैदा होने की जगह। हदीस नंबर 6549। तर्जुमा हमसे मुआज़ बिन असद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको इमाम मालिक बिन अनस ने खबर दी, इन्हीं ज़ैद बिन असलम ने, इन्हीं अता बिन यासार ने और उनसे अबू सईद ख़दरी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अहल जन्नत से फरमाएगा कि ऐ जन्नत वालों। जन्नती जवाब देंगे हम हाजिर हैं हमारे परवरिदगार, तेरी सआदत हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला पूछेगा कि अब तुम लोग खुश हुए? वो कहेंगे अब भी भला हम राज़ी न होंगे, क्योंकि अब तो तूने हमें वो सब कुछ दे दिया जो अपनी मखलूक के किसी आदमी को नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज़ दूंगा। जन्नती कहेंगे ए रब, इससे बेहतर और क्या चीज़ होगी? अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब मैं तुम्हारे लिए अपनी रज़ामंदी को हमेशा के लिए दायमी कर दूंगा, यानी उसके बाद कभी तुम पर नाराज़ नहीं हूँगा। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत और दोज़ख की सिफत का बयान। अबू सईद ने कहा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती सबसे पहले खाना जो खाएंगे वो मछली की कलीजी होगी। अदन के मानी ही हमेशा रहना, अदनत बारस के मानी ही मकीन ने इस ज़मीन में क़याम किया, मक़ाद सद्दिक़ में मदन उसी से माखूज़ है, यानी सच्चाई पैदा होने की जगह। हदीस नंबर 6550। तर्जुमा मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे मावी बिन इमरू ने बयान किया, कहा हमसे अब्वा सहाक़ इब्राहिम बिन मोहम्मद ने बयान किया, उनसे हमीद तवील ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस से सुना, इन्होंने बयान किया कि हारसा बिन सराक़ा बदर की लड़ाई में शहीद हो गए। वो उस वक्त नौमर थे तो उनकी वालिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है कि हारसा से मुझे कितनी मोहब्बत थी, आप मुझे बताएं, अगर वो जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूँगी और सब्र पर सवाब की उम्मीदवार रहूँगी, और अगर कोई और बात है तो आप देखेंगे कि मैं इसके लिए किया करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफसोस किया तुम पागल हो गई हो। जन्नत एक ही नहीं है, बहुत सी जन्नतें हैं और वो हारसा जन्नत अल फरदूस में है।